बड़े दुखी हूँ। मैं तुझे क्यों दुखी हूँ? नहीं इसलिए दुनिया ने आज खराब कर रखी है। क्या हो गया? माँ बाप पास आते हैं कैसे? फ्रीडम नहीं है कॉलेज आते हैं, अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है, ये करना होता है, वो करना होता है, घर जाते हैं तो ये होता है, ऐसा हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। अगर मेरे काम थी वो तक इंटरफियर कर रहे हैं मेरी लाइफ में। इतनी बुरी मेरी हालत है। हम थिएटर हमें ले आते हो क्लास में बैठा देते हो, और जब मन लगने लगता है क्लास में तब टाइम खत्म हो गया, जाओ। बड़ी मुश्किल तो हमारा मन लगता है, जब लग गया तो बेहतर हो गया। अरे तुम जग जाओ, तो नाव में चटकोरी है, पतवार भी है, सब कुछ है। यू आर द captain of your ship. Then, only then, when you are awake, but you are sleeping, don't complain that your boat is all the time buffeted by waves. Don't complain. It is the nature of the waves. The same waves can become helpful in taking your boat to the other shore. If you are awake, the same waves will become a help. The same teachers and the same parents will become a help. If you are awake, the problem does not lie with the society, with the teachers or with the parents. It lies with you because you are जिंदगी मौत है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक बार और, ये हेवर्ड्स 5000 क्या है जो आप बोर्ड में अपने साथ लिए बैठे हो? वो हेवर्ड्स 5000 ये आपकी सारी आइडेंटिटी, नशे का सामान तो तुम अपने मन में अपने साथ लेके चल रहे हो ना। ऐसे कहीं वंडर दैट यू आर स्लीपिंग ऑल द टाइम। ये तुमने अपने दोस्त बना रखे हैं, ये फेसबुक, ट्विटर, ये अपनी आइडेंटिटी। मैं तो जवान हो रहा हूँ, मुझे कुछ all these things, all this garbage that you carry in your mind, all these marks of idleness, this is what is keeping you asleep. Get rid of it, and then, as I said, you will be the captain of the ship. ये बोतलें ना एक दो लगी हैं। क्यों इसको? ये कैसी नाव है जिसको इधर से उधर जाना है और साथ में सामान लेकर के चल रहे हो? नाव भी हल्की हो जाएगी और तुम जग भी जाओगे। बोट चलाने में डर नहीं सकते, उसकी वजह से बाद में आदमी गोल होगा तो वहां जाना तो अगर ये गोल हो इतना ही गोल हो कि मुझे लिटलनेस से ग्रेटनेस की तरफ जाना है, तुम्हारे गोल ये कहाँ होते हैं? Find out as intelligent students what is it that is keeping you drunk, what is it that is keeping you intoxicated, what is it that prevents you from being aware and awake. Find out. It's not far from you, it's very very close to you. Find out and just get rid of it. Promote in your life everything that keeps you illuminated, that keeps you attentive. Promote those forces and get rid of those forces that pull you back into darkness. Get rid of them. Even if those forces carry fancy name tags of attachments, of relationships, get rid of them. No name tag is more valuable than your life. All these pseudo friendships,
always affected by external situations. In those moments, you need something that is favorable. You need an inner locus of control. And because we do not have that control all the time, because man by his nature is susceptible to external influences, you need to have positive external influences also. You need to have positive external influences also. सिर्फ गंदगी ही भर के मत रखो जिंदगी में. Go back to the battlefield of Mahabharata. You have Arjun, you have Karna, and both are archers equal in might and valor. You know that, right? Both are equal in might and valor. You know what is the essential difference between these two, between Karna and Arjun? Arjun's charioteer was Krishna. So when Arjun had his moments of doubt, Krishna was ready with the Gita. Whereas Karna's charioteer was imagine Duryodhan, Sathi, Shalvi. And this fellow was such a bad influence, he kept on implanting doubts in Karna's mind. He kept on implanting doubts in Karna's mind. All the time, all the time, all the time. That's what he kept on doing. वरना दोनों में कोई खास अंतर नहीं था. बस एक ने अपने दोस्त सही बनाया. Krishna was a friend, a relative, a guide, everything to him. दोस्ती उसकी अच्छी थी. तो जब उसके डाउट का मोमेंट आया कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, तो there was somebody who was prepared with the right guidance. Do you have such people in your life, or you have only people like Duryodhan and Shalvi? How to decide between the two? How do I know whether I have the right kind of people in my life? Just see towards what they keep you pushing. Become attentive. Become attentive. मुन्नी बदनामी पे नाचने के तो बहुत दोस्त मिल जाएंगे. मैं चाह रही हूँ मुझे नाचना है तो बहुत सारे आ जाएंगे. अब देख लो कि ऐसे दोस्त चाहिए या ऐसा दोस्त चाहिए कि जब तुम अकेले हो तो तुम्हें अकेला रहने भी दे. Because solitude is precious. जब वो ये आके बोलेगा कि दिलीप कुमार है तो अकेले बैठना है चल साथ में. कैसे है तुम्हारे दोस्त? जानना चाहते हो तो अपने मैसेजेस देखो इनबॉक्स में किस तरीके के मैसेजेस भेज रहे हो, क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं. तुम यहाँ बैठे हो, तुम अपने बगल वाले से विस्परिंग कर रहे हो, वो क्या करता है? वो भी मुस्कुरा के सुनना शुरू कर देता है, कहता है नहीं नहीं पे अटेंशन, डोंट डू दिस. इसी से पता चल जाएगा तुम्हारे साथ जो लोग कैसा है. Is he gently prodding you towards awareness, or is he doing this to you? Get it? Immediately. Yes. सर ये मेरा देखिए उससे रहा है, ये मेरे साथ मिलके उसका बुरा करता है. ठीक है, एग्जाम्पल सेम सर. करण को भी मार नहीं सकता था, कृष्ण जी उसका कवच लेने गए इसलिए वो मारा. सर क्या आप उसे An example is an example and should remain an example. अभी मुझसे कहना शुरू करो कि नहीं सर कर्ण अर्जुन में ऐसे नहीं था कि दोनों की माँ तो एक थी, ये कर्ण था ना, ये इलीगल चाइल्ड. एग्जाम्पल है. या तुम ये भी बोल सकते हो कि सर कर्ण इसलिए मरा था क्योंकि वो सबसे बड़ा भाई था, सबसे पहले पैदा किया था उसने ने, तो वो अर्जुन से 5-7 साल पुराना होगा, क्योंकि वो बुढ़ा हो
गया था कैसे लगेगा एक अच्छा जवाब आने के लिए? डोंट एक्सटेंड एन एग्जांपल टू absurdities. Let it belong to its rightful place. बात को समझो कि जो कही जा रही है. So, there was another item that was written about patriotism. So, patriotism that was written that there are no countries. There is the whole world, and we have to be a patriot to the whole world. But sir, if you look at the past, in the other thing, so we call it unpatriotism. And is this feeling, wrong feeling of being over the Very nice question. When India won the Cricket World Cup last year, how much we celebrated? What's the name? Ankit has just now talked about Bhagat Singh. What do you really know about Bhagat Singh? All you know is that he threw a bomb. All that you know comes to you from popular fiction and a couple of movies that have been made on him. Do you know that he was an extremely well-read man even at the age of 22? Do you know that all the communist literature of the world had been internalized by him at very early age, in his teenage itself? तुम्हारी उम्र में दुनिया भर का कम्युनिस्ट लिटरेचर पढ़ चुके थे. He was not fighting for a piece of land. And his patriotism was not patriotism alone. When his mother asked him, उस जमाने में सिख थे, पंजाबी थे, शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी. भगत सिंह. और माँ ने पूछा कि शादी क्यों नहीं करता? You know what he replied? Freedom. मेरा प्यार आजादी के साथ हो चुका है. ये आजादी देश की आजादी नहीं है जिसकी बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि बीवी के घर पे आएगी मेरी आजादी छीनेगी. He is fighting for freedom in general. This quest to do away with Britishers is just one aspect of his free being. उनकी पूरी being free है. जब being free होती है तो वो सिर्फ छोटे-मोटे काम नहीं करती है. कि एक हिस्से एक तरफ पैट्रियोटिक है और घर में आकर के बिल्कुल हर तरीके के वो काम कर रहे हैं स्लेवरी होती है. तो हमारे सीनियर है 4th ईयर के, वो जिस उम्र के हैं उस उम्र में भगत सिंह को फांसी लग चुकी थी. वो कोई जवान उग्रवादी नहीं थे कि लौटा है जोश आ गया बम फोड़ दिया. ऐसा नहीं था. It was from a great conceptual philosophical understanding that he came to discover himself and a consequent love for freedom. भगत सिंह अगर आज होते ना तो आज भी फ्रीडम के लिए लड़ रहे होते. ब्रिटिशर्स तो बहाना है, कोई बड़ी बात नहीं. आज किसी और के खिलाफ लड़ रहे होते क्योंकि जो आदमी मुक्त है वो कोई बेड़ी बर्दाश्त नहीं करेगा ना अपने ऊपर ना किसी और के ऊपर. टैगोर ने गांधी को कहा था फ्रीडम वन आउट ऑफ स्पिनिंग द व्हील चरखा इज यूजलेस. डू यू नो दैट गांधी हिमसेल्फ भारत तो 47 का आजाद हुआ है. गांधी सन 31 में ही कांग्रेस से रिजाइन कर दिए थे. And he said that for me now freedom means working in the villages, working for the upliftment of the poor. मुझे ब्रिटिशर्स से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है मेरा, क्योंकि वो चले भी गए तो कैसी फ्रीडम. फ्रीडम ये थोड़ी है कि राजा बदल गया. Till the time we are what we are, we cannot be free. Freedom does not mean कि झंडा बदल दिया, यूनियन जैक किया, झंडा लगा दिया. फ्रीडम या स्लेवरी तो हमारे मन में होती है और उसे मन के लेवल पर ही टैकल करना पड़ेगा. इसीलिए वो फिर राजनीतिक से ज्यादा समाज सुधार कर रहे थे. Now, what is patriotism?
अफोर्ड करते हैं। आई एम श्योर आपने लोग यहाँ बैठे हो, एक आध तो यहाँ ऐसा होगा ही जिसके पेरेंट्स पाकिस्तान से आए। कोई है ऐसा पेरेंट्स नहीं तो और पुराने काफी लोग। जब तक एक रेखा नहीं खींची तब तक वो कराची में रहते हो या पेशावर में रहते हो तो वो भी भारत माता करते हैं और उसकी भी जय बोलती है। और आप कराची की भूमि को ऐसे उठाते हो 1930 उठा लो सन या 1946 उठा लो और आप कराची की भूमि को उठा के बोलते जय भारत। और आज आप इसी कराची में न्यूक्लियर बॉम्ब डालना चाहते हो। एक रेखा खींचने से तुम्हारी लॉयल्टीज बदल गई। और क्या हो अगर खालिस्तान मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो चंडीगढ़ में बम डालना चाहोगे? और क्या हो कि कल कश्मीर अगर अलग हो जाए तुम श्रीनगर को उड़ा दोगे? और देश की रेखाएं तो बढ़ती बिगड़ती रहती हैं। जिन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी है वो बात अच्छे तरीके से जानते हैं। हर 10 साल 20 साल 100 साल 50 साल पे इन रेखाओं का क्या है, आदमी ने नक्शे पे खींचता है। कहीं जमीन पे तो बनी हुई नहीं, हमें खींचनी है, हमारी जब मर्जी आती है बदल देते हैं। इसी देश के अंदर देखो ना, कल तक देहरादून वाला बोलता था फॉरेन यूपी का भैया, आज वो उत्तरांचली हो गया है। आज उत्तरांचली हो गया है, अब उसको यूपी से कोई अर्थ नहीं रहा। ये कैसी लॉयल्टी है? जब तक आपकी लॉयल्टी रियल एस्टेट के प्रति रहेगी, पैट्रियटिज्म आपका रियल एस्टेट से अलग कुछ नहीं है कि जमीन का एक टुकड़ा है उसमें मेरा मन लग गया है, उसको कुत्ते का भी लग जाता है। Those of you who have pets know very well कि पेट्स भी अपना एरिया बना लेते हैं और वहीं पे आके बैठ जाते हैं और वहां पे कोई और पेट आके बैठ गया तो फिर उसको भौंकेगा, चिल्लाएगा, मारेगा। रियल एस्टेट से तो किसी को भी प्यार हो सकता है। What is India for you? Real estate